and government employment, we can give only as much and no more. In fact, government employment beyond a point becomes counterproductive. But I was talking about labor. So you had this system of economy being completely ruined in the name of protectionism, and while the whole world was moving towards efficiency, J&K was becoming more and more insular and inward looking. Today, this event of MR starting here is a symbol that not only investment from within India are welcome in J&K, but even from abroad it's welcome. And जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि district should become the fulcrum of development. We are very glad that you are making an investment here. It shows that J&K has arrived. It has arrived in a competitive spirit. Every country, every city competes today for these investments, and the efficiency of these investments is what will take us forward. So this is, I call, a very, very historical day, and I think we have an able partner today who is really making this change here today, and there is a huge responsibility, Mr. Amit Jain, on you. If you don't succeed, then you are going to sort of spoil the story, and I am very confident that you will prove a very able partner. So while this historical day is here, you have a great responsibility of taking this forward in the manner that we all expect this place to be. So just few more things I will talk about, and then I'll end here. 2-3 things. Did anybody think that 2022 will see highest ever tourism in J&K? How many people would have thought that 2019 this would be possible? Tourism in Kashmir in 2022 was highest, twice as much as the previous highest at any point of time. Not 1.25 times, 1.5 times, 1.6. It was 2 times, and that's the new J&K for you. How many people in J&K were playing last year? The previous highest was 2019, that was 6 lakh. This year, more than 50 lakh people have played with different games. So people are playing. People are going to schools. People are going to colleges. People are living their normal lives. This normal life, people said it's abnormal. Because for some people, only buns are normal. And I think the new J&K has arrived, and today's event is a symbol that J&K is now beginning to find its space in the, not only in the national economy, but also globally it is arriving. And I'm very confident that with the MR Group coming here and very prominent people looking at J&K as a real possibility, there is something called in economy blue ocean strategy and a red ocean strategy, which you must be aware about. Now you have entered the blue ocean. There is at the moment first outside investor to come in, and therefore probably I hope that you will do very well and set an example for others to come here. There are huge opportunities here. J&K economy is going to double in less than 5 years anyway. Become a partner to this, and wish you all the best. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और यहाँ पर सर ने बातों बातों में एक बात छेड़ दी कि आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इमार ग्रुप पर। और आपने देखा होगा इंडियन टेलीविजन का एक बहुत बड़ा शो था जिसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता था, और उसमें सवाल पूछने के साथ में जो बजर दबाता था जवाब उसे देना होता था, और अगर वो जवाब नहीं देता तो वो हार जाता था। अक्सर उसमें यह होता था कि जो बजर पहले बजाता था उसका जवाब भूल जाता, हालांकि याद होता था, लेकिन मोस्टली ये होता था बजर वही दबाता था जिसके पास सवाल का सही जवाब होता था, और बजर इमार ने दबाया है, उनके पास सही जवाब जरूर है। जोरदार तालियां एक बार फिर इमार के लिए। और जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जीना सिर्फ सांसें लेने को नहीं कहते। जीने के लिए खुशियां और मुस्कान होनी चाहिए, और वो खुशियां और मुस्कान इमार ग्रुप लेकर आ रहा है। एक बार फिर जोरदार तालियां इमार के लिए, और जोरदार तालियां अब हमारे आज श्री मनोज सिन्हा साहब के लिए, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K, कि वो पोडियम पर आए और आज के दिन, इस ऐतिहासिक दिन पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट साहब के लिए। आप जरा बैठिए प्लीज। देश की राजनीति के दिग्गज नेता, सरल सौम्य और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी, मेरे परम मित्र
आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मंच पर विराजमान हमारे सलाहकार राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इंडस्ट्री और कॉमर्स के हमारे सेक्रेटरी श्री प्रशांत गोयल, कार्यक्रम में उपस्थित एमआर ग्रुप के सीईओ श्री अमित जैन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय विधुड़ी, मैं देख रहा हूं सिनेमा जगत की प्रमुख हस्ती विवेक ओबेरॉय जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था आप सिनेमा बनाए तो आप माल बनाने आ गए हैं। हमारे दुबई में काउंसिलेट जनरल श्री पुरी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, आज के समारोह में आए हुए सभी अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज का दिन जैसा पहले कहा गया निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन और लिस्ट की सबसे बड़ी कंपनी एमआर ग्रुप द्वारा निर्मित किए जाने वाले 10 लाख स्क्वायर फुट के माल का भूमि पूजन अभी थोड़ी देर में होने जा रहा है। जैसा जैन साहब ने बताया, इसके साथ साथ एक आईटी टावर यहां श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में भी आने वाले दिनों में निर्मित करने वाले हैं। अगर आप विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों की सिद्धि की दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। नेताजी ने विस्तार से बताया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और खास तौर से भारत और यूएई के रिश्ते में जो बदलाव 2015 के बाद आए, देश नहीं दुनिया जानती है कि इसका श्रेय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को है। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। 9 वर्षों में जो कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है, अगर ईमानदारी से कोई भी विचार करेगा तो वो इस बात को जरूर स्वीकार करेगा कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। इसी साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ने जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं आया था श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, 16 आती थी, 16 जाती थी। आज 108 फ्लाइट ऑपरेट होती है। जम्मू एयरपोर्ट से 6 या 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब 44 हो रही है। अब श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलने लगी है। नया एयरपोर्ट श्रीनगर में, नया एयरपोर्ट जम्मू में भारत सरकार बना रही है। अनेक इस तरह के काम। ये वक्त नहीं, अभी एक बिजनेस डेलीगेशन भी यूएई से आया हुआ है, उनके साथ कार्यक्रम, उसमें मैं अपनी बात रखूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के जीवन के बदलाव के लिए इसे एक नई शुरुआत मानता हूं। और आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि ये तवारीख में दर्ज होगा। ये जगह ऐसी है कि हर अच्छे काम के बारे में भी कुछ खबरें चलाई जाती हैं। कल या परसों किसी ने कहा कि लुल्लू ग्रुप जो है वो बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के बिना सिर पैर की बात करने वालों की संख्या काफी है। चूंकि मीडिया के मित्र हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनको हर चीज में निगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है, वो जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। एक अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और आज मैं बड़े फक्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमने
इन्वेस्टर्स आवे उनके लिए बेहतरीन वातावरण बनाने की कोशिश की है। जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से देश के गृह मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम को बनाने में हमारी मदद की। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के किसी राज्य में इंडस्ट्री के लिए इतना इंसेंटिव नहीं है जितना आज जम्मू कश्मीर में। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है, और नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है, यहां माहौल बनाया जाता है कश्मीर में कैसे लगेगा, वो दिन लग गए। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा है उसमें सबसे कम अपराध जम्मू कश्मीर में होता है। मेहता जी ने बताया एक समय था जब 200 दिन हड़ताल में बीतते थे, अब 200 दिन स्कूल और कॉलेज चलते हैं। अब 10,000 की संख्या में भारत का तिरंगा लेकर पुलवामा और त्राल में, सोपिया में भी लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो एक बड़ा बदलाव पिछले 3 वर्षों में हुआ, और मैं जितनी बार मैं कहता हूं, मुझे बार बार ये ध्यान आता है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा दिन था, और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत की संसद ने जो फैसला किया, उसका नतीजा है कि ये वातावरण आज जम्मू कश्मीर में बना है। पहले चाल कछुए की थी, और आज रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्थापित हुआ है। आजादी से लेकर 2 साल पहले तक कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का आया था। जो लोग रोजगार का सवाल उठाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्यों आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा की। माननीय प्रधानमंत्री ये पिछली बार जम्मू आए थे तो उस समय 38,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। हम कोशिश कर रहे हैं, जमीन की उपलब्धता हमारी बढ़ रही है। कुछ लोगों ने कई पीढ़ियों के लिए जमीन रख ली थी, और जमीन सरकारी रख ली थी, अब उनके कब्जे से बाहर हो गई सरकारी जमीन सरकार के पास आ गई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी जमीन है उसमें इंडस्ट्री लगेगी, जो छोटी जमीन है कश्मीर जम्मू के नौजवान उसमें खेलेंगे। और मैं जानता हूं ऐसे अनेक गरीब परिवार हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के, अंतिम दौर में जब मौत हो जाती है तो उन्हें जगह नहीं मिलती है। वो जमीन हम ऐसे गरीब कश्मीरी भाइयों को भी देने वाले हैं अंतिम समय में, जिन्हें दफन किया जा सके। जमीन हमने लिया है, जानबूझ के लिया है, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिनके पास आ गया, आने वाले दिनों में सरकारी जमीन सरकार के पास ही रहेगी, दूसरे के पास नहीं रहेगी। एमआर ग्रुप को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 22 महीने में 5,000 से ज्यादा देसी इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं। हर रोज 8 नए इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, और प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो जा रही है। और पिछले महीने में तो 30 दिन में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई। मैं अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अफसरान का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और जो नौजवान कई हमारे आए हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्यमशीलता जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अनेक रिफॉर्म पिछले 2 वर्षों में किए गए हैं, आज समय नहीं, मैं आगे बोलूंगा उसमें, ये भूमि पूजन का समय है। एक भरोसा मैं आप सबको देना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो फैसले 10 दिन में होंगे, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में कराए जाएंगे। ये मैं एमआर ग्रुप को कहना चाहता हूं पूरी तरह से। और तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए भी हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट उधमपुर में बनाई है। लॉजिस्टिक्स के दृष्टि से भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आइए जम्मू कश्मीर में निवेश करिए, और यहां संभावनाएं बहुत हैं। उन संभावनाओं का जिक्र मैं आगे करूंगा, अगली बैठक में करूंगा। एमआर ग्रुप से मेरा एक निवेदन है, जो टाइमलाइन आप
आपने दिखाई है। मुझे लगता है कि देश की संसद अगर 1.5 साल में बन सकती है, अमित जैसा और आपसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है, काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो अब तकनीक जहां पहुंच गई है, मुझे लगता है कि उस समय सीमा को 1 साल आप घटाइए और ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तारीख है 19 मार्च, अप्रैल की तारीख भी बता के जाइए कि आईटी टावर का भूमि पूजन श्रीनगर और जम्मू का कब होगा। ये 2 बातें कह के मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे ग्रुप को, आपके पार्टनर को, और जो लोग बाहर से आए हैं इस आयोजन में, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और व्यापार की बेशुमार क्षमता बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा, और पूरा प्रशासन हमारा पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमने भी ये तय किया है कि इस दशक में जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है, उसे जमीन पर उतार करके ही औद्योगिक क्रांति का नया जन्म जम्मू कश्मीर में हो, ये हम करेंगे। अंत में जाने के पहले बहुत शेरो शायरी हो रही थी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कविता मुझे याद आ रही, द वुड्स आर लवली दे आर कैंडी बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और 2 पंक्तियां कहते जो मैं कई बार कहता हूं, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और यहां हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके अंदाज़े बयान से तो मैं हमेशा मुतासिर रहा हूं और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम मुतासिर रही है। और अब वक्त आ चला है भूमि पूजन का, उसके बाद जो बाहर बुनियाद रखी जानी है आज, और उसकी जो साइनेज का जो स्टोन है उसको अनवील करना है, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे चीफ गेस्ट, और उसके बाद आप सबसे गुजारिश होगी, जो ही हमारे चीफ गेस्ट निकलेंगे यहां से चलेंगे एसकेआईसीसी की तरफ, तो आप सब भी इनवाइटेड हैं, तो काइंडली ज्वाइन अस एट एसकेआईसीसी, क्योंकि अगला फंक्शन एसकेआईसीसी में ही होना है। पहले यहां भूमि पूजन होगी, अनवीलिंग ऑफ स्टोन होगा, और उसके बाद हम एसकेआईसीसी की तरफ चलेंगे। और जो बाकी साहिबान हैं जिनके साथ यहाँ पर एमओयू साइन होने हैं, वो बैठे रहेंगे, और बाकी डिग्निटरीज भी बैठी रहेंगे। सो इससे पहले कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रस्थान करें टूवर्ड्स भूमि पूजन, हम राष्ट्रगान प्ले करेंगे। आप सबसे गुजारिश की अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए।